So dear class 8 student, I am welcoming you in the session of computer. So as we have started our chapter which is entitled by artificial intelligence, chapter number 10, we have seen really smart, interesting aspect of this chapter. We have seen what is the natural language processing, deep learning, machine learning, and etc. But now, today's our topic is application of AI. Now we are considering where AI is being implemented, where AI is being used. Okay, so now let's understand the applications of AI. The fields where AI can be used are limitless. Okay, because we cannot just limit this AI field because you can find the AI everywhere, whether it's your smartphone, whether it's your computer, whether it's your digital devices, whatever you are using. So we can find the applications of AI everywhere. So almost every human activity can benefit from the use of AI and AI based devices. So I have told you earlier that why we are using AI is to enhance our utilizations. Okay, to just give us a comfort so that we can do our work in a smarter way, not in the hard work. Because today's era not doing the hard work because we are now considering the smart work. Okay, so let us understand some important applications of AI. As in the sketch diagram, it is already given to you that it is used in natural language processing, it is used in deep learning, it is used in simulation modeling, machine translation, social network analysis, machine learning, robotics, and soft robotics. Now you will ask me, sir, what is soft robotics? I will confirm you. Internet of Things, one of my favorite topic to discuss for image analytics, graph analytics, audio analytics, visualization, and virtual personal assistant. So these are the major application of AI. Now let's understand this application in detail. Expert system, mark my point students, expert system can be understood by this diagram only, this flow diagram only. Only you have to consider these three arrow diagrams and then you can understand this expert system. In expert system we create a knowledge base. Okay, knowledge base, that means we are going to store several kind of information, images, videos, audios, or whatever you can say, to a particular subject. So we are creating a knowledge base. Then we will design an inference engine. Now you will send me the, sir, what is inference engine? Inference engine is applying the coding part. Okay, applying the if then else statement, applying the loop statement, applying the coding, whatever the language you are choosing. It may be Python, it may be C++, it may be Java, but it may be Prolog, it may be Lisp. So whatever the language are you using, whatever the code are you using, whatever the logics are you applying, so it will be referred as an inference engine. And then you are building a user interface. Now question arises, what is user interface? User interface, the first interactive screen whatever you see is called as user interface. Supposedly, if you, whenever you start your computer, whenever you boot your computer, what you see, what the first image you see on your computer can be referred as user interface. Okay, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, नॉलेज बेस बनाएंगे, खूब सारे उसके अंदर डिटेल्स डालेंगे, फिर अपने उसके अंदर कोडिंग करेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, अपने कुछ भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लिखेंगे इन्फरेंस इंजन के अंदर, और यूजर इंटरफेस के अंदर यानी उसकी डिजाइनिंग करेंगे बच्चों। ठीक है, डिजाइनिंग का मतलब जैसे कि अगर आप इस टूल्स को देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ये कुछ कन्वर्ट की दे रहा है, यहाँ पर कुछ बटन है, यहाँ पर ये एरो बटन अपवर्ड्स है, यहाँ पर ये एरो बटन डाउनवर्ड्स है। तो जितने भी इंटरैक्टिव चीजें, जितने भी ग्राफिकल चीजें होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। ठीक है, सो इफ वी आर क्रिएटिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, देन we are creating such devices or such system in which we are providing the knowledge base, we are giving the logic. Now it may produce some, or it may solve some complex problems. Okay, because we as a human being have to do lots of work. So now we want a system, now we want a device, now we want a software that can solve our program, solve our problems in a bit, right? If we want to save our time, if we want to conserve our time, or if we want to utilize our time, so then we can use the expert system. Okay, now, so I think this is clear. So every expert system comprises of three components. What are the three components? As I have told you, that knowledge base, inference engine, and user interface. So some characteristics of expert system are high performance, understandability,
reliability, and high responsiveness. High responsiveness means that it will respond to you, it will suggest you something. Just you can correlate with the policy advisor, like, okay, if you can see, there are lots of software available in the website, on the website or Google Play Store, that in which you are entering your name, you are entering your mail address, you will enter your mobile number, age, and some sort of details about your health. If you will enter these sort of things, then it will suggest you some health plan according to your age, it will suggest you some life insurance plans according to your age. Why it is suggesting you, why it is advising you, why it is instructing you? Because we have created an expert system with the help of AI. Okay, but the data is being given by you only. The age entered by you, the mail address entered by you, the health details given by you. So after the data you provided to that system, it is generating a result, it is generating a short summary, or it is advising you to purchase, to buy a different kind of policy, right? Getting my point? Please give your consent by showing the thumbs up sign if you are getting my point, students. Okay, beta. Okay, beta. Now we will understand the machine vision. I think this is a typical topic. Machine vision. It is also correlated with this expert system, but machine vision is mainly used for suggesting the things. Okay, so let's find out what is machine learning. Sorry, machine vision. So machine vision MV is the technology and methods used to provide imaging based automatic inspection and analysis for such application as automatic inspection, process control, and robot guidance, usually in industry. So देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिंपली ये समझना है कि मशीन विजन जो होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आता है या रिसर्च के अंदर यूज आता है। अब आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है कि ये केवल रिसर्च और इंडस्ट्री के लिए अंदर ज्यादा यूज आता है, क्योंकि बेटा ये ज्यादातर जो होते हैं वो इंस्पेक्शन का काम करता है मोस्टली। मोस्टली इंस्पेक्शन का काम कौन करेगा? मशीन विजन। एंड सेकंड इसका काम होता है सजेशंस देना, एंड थर्ड इसका काम होता है रिसर्च करना। So machine vision, as the name is suggesting itself, that it will do the controlling part. Okay, so if we are designing a device that will control something, that will design something, that will inspect something, then we can say that it is applying the machine vision technology, right? So machine vision is a term encompassing several technologies. It encompasses several technologies. Which technology includes it? Software and hardware products, integrated systems, actions, methods, and expertise. Student, you, I know, hope that you all are using AC. Okay, AC, everyone is using the AC. तो AC में जब आप देखते हैं कि टेम्परेचर, कई AC के आप लोगों ने देखा होगा, एयर कंडीशनर के एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से वो अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, मॉडरेट करता रहेगा, यानी चेंज करता रहेगा। तो आखिर उस एसी को, उस लोहे के डिब्बे को या उस स्टील के डिब्बे को कैसे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और अब कम लोग आ गए हैं, अब मुझे ज्यादा टेम्परेचर करना चाहिए, अब मुझे कम टेम्परेचर करना चाहिए? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई थिंक। So it is a very interesting topic. Just a second, student. So जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एसी का, तो उसको कैसे पता चल रहा है? तो इसके अंदर अपन ने क्या डेवलप कर रखा है? इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर रखा है अपन ने। कैसे चिप लगा रखी है जिसके अंदर अपन ने कोडिंग कर रखी है। कोडिंग के थ्रू वो एनवायरनमेंट को गैदर करता है। वो अपने जो जब भी ह्यूमन बींग्स होते हैं तो एक टाइप के आप कह सकते हैं कि हम कुछ सेंसर्स जनरेट करते हैं, सेंसर जनरेट करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम अपनी एक्सिस्टेंस को काउंट करवाते हैं। तो उस उन वो जो एटमॉस्फेरिक लेयर में जितने भी सर्किट्स जा रहे हैं, जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं, उनको कैप्चर करके वो क्या करता है, टेम्परेचर को बदलता रहता है, वेरिएट करता रहता है ना। जैसे कि अब मान लीजिए ज्यादा लोग हैं तो जो अपनी डेंसिटी लोगों की ज्यादा होगी, उतने ही क्या होगा, आप कह सकते हैं कि आपने जो गैसेस रिलीज करते हैं, जो अपने सेंसेस जो होते हैं वो काउंट होते हैं, तो उनके कैप्चर करके वो क्या करेगा, मशीन विजन के थ्रू उसको कैप्चर करेगा और साथ के साथ वो डिसीजन लेगा कि हाँ अब मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है या कितना टेम्परेचर लो करना है, राइट? So the overall machine vision process includes planning the details of the requirement and projects and then creating a solution. During execution, the process starts with imaging, followed by the automated analysis of the image and extraction of the required information. I hope this line is clear.
First, it will start with imaging, and now you are saying imagining not. It is called the imaging. That means whatever the data we have been provided to that system, it will process it, then it will analyze it, and then it will extract the information. Okay. So the components of an MV system usually including lighting, a camera or other imager, a processor, a software and output device. अब देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ रहा है। अपन जब फोटो क्लिक करते हैं तो एक स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा बिल्ड होकर आ जाता है, जिसके अंदर वो आपका आपके फेस को कैप्चर करता है ना। और फिर आप उसको ब्यूटीफाई कर देते हो, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हो, आप उसमें क्या करते हो, एनहांस कर देते हो उसकी चीजों को। कैसे है? क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी आप लोग जो अपने कैमरा लेते हो अपने फोन मतलब आप जब भी खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है एआई इनेबल्ड कैमरा, है ना। सभी ने देखा होगा उसमें क्या लिखा रहता है, एआई इनेबल्ड कैमरा। तो आखिर कैमरा एआई इनेबल्ड कैसे हुआ? क्योंकि अपन ने क्या अप्लाई कर रखा है उसके अंदर, मशीन विजन। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आपके फोटो फेस के आगे स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बना आ जाता है। वो स्क्वायर कहाँ से उसने लिया? मशीन विजन के थ्रू, क्योंकि वो इमेजिंग कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट लगाएगा कि हाँ भाई यहाँ है जो मुझे इसको फोकस करना है। ठीक है, तो वो एमवी के थ्रू होता है। दिस इज नॉट moral value, this is machine vision. ठीक है। So the component of an MV system usually including lighting, a camera or other imager, a processor, a software or an output device. I hope I am clear. ठीक है। A very common use of machine vision is in the automated traffic management system that does everything from violation capturing to issuance of an e-challan without human intervention. आप लोगों ने सुना होगा कि मेट्रो सिटीज में कि अगर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को ब्रीच आउट करता है, यानी कि उसके रूल को तोड़ता है, तो जो ई चालान है वो ऑटोमेटिकली किसको कैप्चर करके अपने मतलब ई चालान जो है इशू हो जाता है। कैसे वो इशू करते हैं? क्योंकि वो जो भी आपके इमेज होते हैं, नंबर प्लेट होती है, उस नंबर को कैप्चर करेगा, उससे डेटा फेच करेगा और फेच करने के बाद उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में ई चालान प्रोवाइड कर देता है। And now you will ask me, sir, this system is not being applied in a Bikaner. Yes, still not, but let's see when it will be applied in Bikaner also. ठीक है, जब आप लोग 10th में आ जाएंगे तब आपका। चलिए, स्पीक रिकॉग्निशन जैसा कि नेम once again is suggesting, speech recognition is the ability of a machine or program to identify words and phrases in spoken language and convert them to a machine readable format. I think students line by line पढ़ाना आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। केवल इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझा दूं तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। कि लाइन बाय लाइन तो अपने एसएसटी और वगैरह नहीं पढ़ रहे ना, जिसमें आप मुझे आपको एक एक लाइन की डिटेलिंग करनी पड़े। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब आपने कोई वर्ड्स बोला, आपने कोई फ्रेजेस बोली, आपने कोई सेंटेंसेस बोले, तो वो उस कीवर्ड को कैप्चर करता है। मैं आपको पहले ही एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे कि आपने बोला व्हाट इज द वेदर टुडे। ठीक है, बस आपने ये वेदर बोला और वेदर के पीछे की कहानी जो है ऑलरेडी कोडेड है, पहले से गिवन है डेटा। इसीलिए आप मान के चलिए कि कोडिंग बहुत ज्यादा आने वाले समय में कोडिंग के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है, क्योंकि हमें अगर एआई इनेबल्ड होना है तो हमें कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी कोडिंग है कि अपन ने जैसे ही बोला वेदर, तो वेदर के जितने भी कोड किए गए हैं वो उस कीवर्ड को कैप्चर करेगा। उसको कैप्चर करने के बाद वो रिलेट करेगा कि आखिर इस बंदे ने कहाँ की वेदर पूछा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको कहता है कि अपना जीपीएस ऑन करके रखिए। आपने क्या कर रखा है? जीपीएस ऑन कर रखा है। आपने खुद ने ही वेदर बोला, फिर आप सरप्राइज होते हैं कि देखो मोबाइल ने अपने को आज का अपने यहाँ का वेदर बता दिया। अरे इसमें सरप्राइज होने की कुछ बात नहीं है, सब कुछ तो डेटा आपने ही तो प्रोवाइड किया। ठीक है, जब जीपीएस आपका ऑन है तो वो आपकी जो भी रियल टाइम जो भी आपका लोकेशन होगा वो उसको कैप्चर किया उसने। आपने वेदर बोला, उसने उसको कैप्चर किया, और जो भी डिटेल थी वो ला करके उसने स्क्रीन पर रख दी। और फिर हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मैंने तो बीकानेर लिखा भी नहीं था तो भी इसने मेरे को बीकानेर का ही टेम्परेचर बताया है ना। इट इज फनी ना, क्योंकि वो बिना जीपीएस के तो आपके वॉइस को कई बार होता है ना कि आपसे वो कहता है कि दिस इज कंपल्सरी। क्यों कहता है कंपल्सरी? क्योंकि उसे आपका डेटा लेना होता है। जब वो डेटा लेगा तभी तो आपको डेटा फेच करके देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन को एक बार और बता देता हूँ। जो भी आपने बोला, जो भी आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, वो उसको लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फाइन ट्यूनिंग करेगा, पहचानेगा, उसके बाद जो भी उसका रिलेटेड रहेगा उससे वो क्या करेगा, अपने को डेटा फेच करके देगा।
तो आपने कहाँ यूज किया है स्पीच रिकॉग्निशन का, कहाँ यूज कर सकते हैं? एप्स में यूज करते हैं, अपने सर्च इंजन पे यूज करते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, असिस्टेंट्स के लिए। नाउ ट्रैवल, अब देखिए, अब आप सोचिए कि सर ट्रैवल में एआई कैसे आता है? ट्रैवल में एआई कैसे आ सकता है? ट्रैवल के लिए अपने क्या यूज करते हैं आजकल? तो हम भाई सब जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, या तो गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं, या फिर अपने क्या यूज कर रहे हैं बेटा, ऑनलाइन वेबसाइट्स। अब ऑनलाइन वेबसाइट में देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। सिंपल फंडा ये है कि जो भी आपने डेटा किया, उस डेटा को इसने एनालाइज किया, एनालाइज करके उसने रिजल्ट दे दिया। अब आपने गूगल पे टाइप किया कि लेट्स से बीकानेर टू मनाली ट्रेन, बस आपने सारा डेटा उसको दे दिया, इसको, गूगल को। इसके बाद तो भैया फिर वो ही आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ मनाली में घूमना चाहिए। आपको भले कोई सी भी चीज ना पता हो, लेकिन मनाली की सारी चीजें कौन बता देगा? गूगल। क्योंकि आपने क्या कीवर्ड डाला, बीकानेर टू मनाली ट्रेन। आखिर ट्रेन कौन देखेगा जिसको जाना है मनाली? मनाली जाने की इच्छा रखते ही आपके क्या है, जितने भी उसके कीवर्ड्स मैच कर रहे थे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वो सभी ट्रैवल रिलेटेड जो आपको गाइडेंस देनी हुई, जो आपके सजेशंस देनी हुई, वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो गूगल मैप्स का ही देख लीजिए, अगर आप गूगल मैप्स में जब आप किसी एक जगह पर जाकर के आते हैं, तो फिर वो आपसे हाथों हाथ रेटिंग मांगता है कि हाँ भैया आप रेटिंग दो, कि आपको क्या ये चीज अच्छी लगी थी या नहीं लगी थी, हाउ यू रेट इट। भले ही आप आज से 10 दिन पहले गए थे, मतलब जो भी है, कितने ही दिन हो चुके हैं, सब कुछ बेटा डेटा के ऊपर वर्क करता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन डेटा। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द डेटा साइंस so much, that's why we are considering the artificial intelligence so much, that's why we are considering the coding so much. Why we are considering? Because all these together make a better world for us. कि ये जो ऑटोमेटिक से चीजें हम बात करते हैं ना, आज तो ये ऑटोमेटिक हो गया, आज तो वो ऑटोमेटिक हो गया, ये सब डेटा के ऊपर काम कर रहा है बेटा, और ये सब कोडिंग के कारण काम कर रहे हैं। सो आई होप दैट आई एम क्लियर फॉर द ट्रैवल सेगमेंट, राइट? और डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट मोर? प्लीज गिव योर कंसेंट बेटा बाय शोइंग थम्स अप साइन। हाँ जी बेटा, ओके। आप देखिए ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ऑटो पायलट मोड आज का यूज नहीं है, ये बहुत पहले की यूज है ना। तो ये तो काफी पुराना हो चुका है मैटर। आजकल तो ऑटो पायलट मोड में व्हीकल्स चल रहे हैं, कार चल रहे हैं। आप लोगों को तो वैसे ज्यादा पता है टेस्ला के बारे में, ठीक है। सो द ओल्डेस्ट यूज ऑफ एआई इज परहैप्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री आप लोग पूछेंगे क्या होता है? एविएशन इंडस्ट्री का मतलब होता है, हमें इसकी शुद्ध हिंदी करो तो इसको हम बोलेंगे वायुयान, ठीक है। बट एविएशन का मतलब है व्हाटएवर इज रिलेटेड टू स्काई एंड द aeroplanes. So the autopilot feature has been a standard part of almost all commercial airlines since a long time back. Yes, you know it, right? So the autopilot is able to synchronize the correlate the readings of the various devices in the aeroplane and use the information to fly the plane according to the flight plan. अब एक बात बताइए, जो पायलट होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग चलाता है? प्लेन, फ्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग। रूट जो है वो किस में मेंशन है? फ्लाइट प्लान के अंदर। और क्या कहते हैं, ट्रैफिक कम कहाँ होगा? स्काई के अंदर। तो इसीलिए जो होता है फ्लाइट प्लान को है डिजिटली स्टोर कर दिया जाता है, और फिर उसी डिजिटल फ्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो एरोप्लेन आपका फ्लाई करता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे पैडलिंग करने की जरूरत है, मैं पैडल मारूंगा तब जाके प्लेन उड़ेगा। मेरे को तो बटन से तो दबाना है, राइट। जब मैं बटन प्रेस करूंगा, जब मैं कुछ उसमें ऑटोमेशन पहले से हो रखा है, तो वो जो बटन प्रेस करने हो गए, या फिर जो उसकी स्पीड मेंटेन करनी होगी, वो किसके थ्रू हो रहा है? डिजिटली हो रहा है। डिजिटली मैंने उसके अंदर क्या कर दिया है? फीड कर दिया डेटा को, और फिर उसी डेटा को फीड करते हुए चलता है और फॉलो करते हुए चलता है। एम आई क्लियर टू यू? और ये डीप लर्निंग के अंदर होता है, क्योंकि सरकमस्टांसेस जो है वो आप पहले से फिट ज्यादा नहीं कर सकते। सरकमस्टांसेस तो उसको खुद को ही जनरेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए डीप लर्निंग का ये एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, नेविगेशन गूगल मैप्स का पूरा पूरा एग्जांपल है, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ बताने की नीड भी नहीं है। AI enables navigation apps such as Google Maps to correlate data from actual passengers to map out the fastest route from one place to another. The most appropriate use of AI I really like is the use of navigation. कि गूगल मैप ने तो सच में जो आप कह सकते हो ट्रैफिक रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, उसको तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। कितना अच्छा होता है ना कि आप बस अपना स्टार्ट या डालते हैं रूट, और उसके बाद डेस्टिनेशन रूट डालते हैं, उसके बाद तुरंत आपको मैपिंग करके दे देता है।
है ना। तो हम लोग ये सोचते थे कि मैप पहले से स्टोर्ड है और इसके अंदर क्या होता है ये अपने आप ही इसको ले लेता है। नहीं, ये एआई का एक एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स? एआई का एग्जांपल है। So, AI is used in autonomous vehicles and driverless cars to drive the vehicle safely and move along the optimum route. Optimum route अपने उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसी रूट को फॉलो करते हुए करते हैं। अब देखिए ईमेल के अंदर भी एआई है। ये तो बहुत इजी है कि ईमेल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे होता है। बहुत सिंपल सी बात है। Gmail and other mail services providers use AI to create spam filters that are highly efficient in filtering spam from relevant email. अब देखिए बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट ये था कि यू हैव लॉग्ड इन द लिंक्डइन। लिंक्डइन ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लिंक्डइन एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जॉब को रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर आपने लिंक्डइन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है, that means you are searching for a job, right? If you are searching for a job, then this your mail ID will be spread to every other recruiting company, right? जैसे ही रिक्रूटमेंट कंपनी में आपकी इतनी सारी मेल्स जाती है, ये मेल जो है आपकी स्कैटर हो जाती है हर एक कंपनी के पास, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका मेल आईडी चला गया। अब वो जो है इसी मेल आईडी का यूज करेंगे अपने स्पैम फोल्डर्स बनाने के लिए। ठीक है, और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे, आपके उस मेल एड्रेस को भेजेंगे। यानी कि आपने तो एक ही जगह लॉग इन किया, आपने अपना मेल आईडी तो केवल एक ऐप में डाला, एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, बट वो मेल आईडी अब आपके क्या स्कैटर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, एक जॉब प्रोफाइल के लिए, जॉब के लिए आपने लिंक्डइन के अंदर मेल आईडी प्रोवाइड की थी। तो आप ये देखिए कि कई बार हमारे पास ऐसे मेल्स आते हैं जिसको हमने कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया हो, जो हमारे कभी रेलेवेंट नहीं रहे, आखिर उनके पास हमारी ईमेल आईडी पहुंची कैसे। दिस है ना, ये क्वेश्चन आता है ना आप लोगों के दिमाग में। कई बार आपके टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे आते हैं कि जो आपने कभी उनको सब्सक्राइब ही नहीं किए होते हैं, ना ही आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, बट उनके पास आपके नंबर कैसे पहुंचे। ये जो आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये जो आप लोग स्नैपचैट चलाते हैं, ये जो आप लोग फेसबुक के अंदर या किसी भी एक रैंडम गूगल फॉर्म के अंदर आप लोग अपने झट से गेम डाउनलोड करने के लिए आप लोग फटाफट से ये जो अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं ना, ये मोबाइल नंबर फिर वो वही समझते हैं। आजकल बेटा हर जगह गेम चल रहा है डेटा कैप्चर करने का। जितना कम आप डेटा प्रोवाइड करोगे उतना ही आप सेफ रहोगे, है ना। रैंडम हम गूगल फॉर्म में अपने जाकर के नंबर दे आते हैं, गेम डाउनलोड करना है, हमने एक छट से आईडी बना दी और वहां नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस, है ना। तो यहीं से आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, यहीं से आपने अपना मेल आईडी दिया, उसके बाद स्पैम मैसेजेस आएंगे, स्पैम ईमेल्स आएंगे। कोई भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ता है नहीं, हमें तो बस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, जल्दी से गेम डाउनलोड हो जाए और उसके बाद हम बातें करेंगे कि तूने कितने किल किए और मैंने कितने किल किए। तो ये होता है स्पैम। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई होप दैट यू हैव sorry, please ignore this. You have just a second student. ठीक है, तो साइबर थ्रेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक ऐसे मैसेजेस भेजेंगे, ऐसे ईमेल्स भेजेंगे जो एकदम जेन्युइन लगेंगे। ठीक है, आपको दिल लगेगा कि हाँ दिस कैन बी इम्पोर्टेंट, बट दे आर नॉट, दे आर फॉर द यूज ऑफ फॉर्जरी ना। उसके अंदर आप क्या करेंगे कि उस पर अगर आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक किया, वो एक ऐसे वेबसाइट पे आपको प्रॉम्प्ट करेंगे जहां से केवल आपका डेटा कैप्चर होगा, और वो डेटा कितना भी सेंसिटिव हो वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर रहते हो उस टाइम। ठीक है, जैसे कि फिशिंग के अंदर आएगा कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए गए, दिस सॉर्ट ऑफ मैसेज कैन अराइव। सो आप क्या देखेंगे कि हाँ ठीक है पैसे कट गए, दैट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अपने सीधा झट से उस ब्लू लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तैसे वहां से आपका क्या करेगा, कुकीज कैप्चर कर लेता है। अब कुकीज क्या होता है, हर एक वेबसाइट पे जब भी आप रन करते हैं तो वहां पर एक लिखा होता है कि दिस वेबसाइट विल कैप्चर योर कुकीज। कुकीज इज योर आईपी एड्रेस स्टूडेंट्स, कुकीज द यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस, and you are agreeing that I am ready to share my cookies. How can it be possible, right? If you will allowing them to capture your cookies, that means you are going allowing them to share all your personal detail, whatever you have given to that Chrome browser, whatever you have given to that Vivo browser, whatever the browser you are using,
Okay, so in that cookie, it consists of different personal information. ठीक है, तो जो भी वेबसाइट आपके कुकीज यूज करती है, इसका मतलब वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है बेटा। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंस में भी जब आप कह सकते हैं कि आपका जो डेटा जाता है, जितने भी साइबर थ्रेट्स होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं? कुकीज के थ्रू होते हैं और मेल आईडी के थ्रू होते हैं। चलिए बात करते हैं एआई के बारे में कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपने एआई कैसे यूज आ रहा है। एआई प्रोग्राम कैन लर्न टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हाई यील्ड कस्टमर्स, to recognize fraud and even to forecast change in stock market. स्टॉक मार्केट में भी एआई हो जा रहा है। वो क्या करेगा? डेटा एनालिसिस करेगा कि 3 साल में एक स्टॉक ने कितना मुझे रिटर्न दिया, कितने बार इसका इन्फ्लेशन रेट अप गया है, कि इन्फ्लेशन रेट डाउन गया है, कितना जो स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी ने कब इन्वेस्ट किया, ये कौन कर रहा है? ये एआई के थ्रू ही कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये जितने भी एप्स बने हुए, जितने भी चार्ट एनालिसिस आज जो आप करते हैं, ये एआई के थ्रू हो रहा है। तो बेटा एआई के ऊपर बात करने के लिए आई थिंक 40 मिनट्स कभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसके ऊपर तो हम कितनी भी बातें करेंगे तो वो कम ही रहेगा। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन एंड यू हैव gained some sort of knowledge today. So I hope you have enjoyed it.